عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب یہ لیکس آئیں شاید کوئی پہلے لیڈر ہوں گے جنہوں نے اس انداز میں آ کے سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ اس کی تحقیقات ہوں گی، لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ پاکستان سے متعلق 700 لوگ ہیں۔ تو پہلے بھلے وزیر اعظم نے بھی کہا میں خود تحقیقات کرواؤں گا۔ نہیں، انہوں نے تو بلکہ یہ کہہ دیا تھا پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے، اگر تحقیقات میں لگ جائیں گے کام کون کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ آج سارا دن پرائم منسٹر نے اسی معاملے پہ فوکس رکھا۔ آج ان کی جو اہم ملاقاتیں ہوئیں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ، اور آج انہوں نے جو سیل بنا دیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ اس طرح ان اٹینڈڈ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا فیورٹ ٹاپک ہے۔ یو این جی اے کے فورم پر جا کر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ترقی پذیر ممالک سے رقم لوٹ کے لے جائی جاتی ہے ترقی یافتہ ممالک میں۔ آج یہ چیز انڈورس ہو گئی ہے، اور جس طرح اس سے پہلے ممالک ریسورسز نکال کے لے جایا کرتے تھے، اور آج یہ دنیا کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اس میں یہ آف شور کمپنی آپ دیکھیں اس میں انکشاف کیا ہو رہا ہے، اس میں ایکسپوز کون ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ آف شور کمپنیاں ہو سکتا ہے یہ 700 کے 700 لوگوں کا یہ وائٹ منی ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن ایک چیز ایکسپوز ہوئی ہے کہ پاکستان کی یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ وزراء ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ ریٹائرڈ جرنیل ہوں، چاہے وہ کاروباری شخصیات ہوں، چاہے وہ میڈیا مالکان ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے ملک کے سسٹم پر وہ یقین نہیں رکھ رہے، اور وہ باہر جا کر اپنی چیزیں چھپا رہے ہیں۔ اور آف شور کمپنی جو ہے، ٹھیک ہے یہ غیر قانونی نہیں ہے، غیر قانونی صورت میں ہوتی ہے جب یہاں ایف بی آر کے ریکارڈ میں آپ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے۔ یہ تو اب تحقیقات آگے جا کے ہوں گی نا، اب نیب اب ایف بی آر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسرا ماریہ میں یہ امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں وہ ملک جو ایف اے ٹی ایف کے معاملے پہ اس پلیٹ فارم پہ پاکستان کی عام ٹوسٹنگ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کرتا ہے پاکستان، فائنینسنگ کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور خود اسی منی لانڈرنگ کے پیسے پر وہ ملک بتائیں نا یہ پیسہ ان کے ملک میں کیسے آیا، حساب دیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے بعد سب سے بڑا ٹیکس ہیون جو ہے وہ امریکہ ہے، اور یہ بنے ہوئے ہیں کہ جمہوریت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، یہ منی لانڈرنگ اینٹی منی لانڈرنگ رجیم میں آ کے پاکستان کا نام جو ہے یہ گرے لسٹ میں ڈال کے کہتے ہیں جی کہ فلاں فلاں قوانین بنائے، اور خود ان کی معیشتیں اس پہ چل رہی ہیں۔ تو ایک جانب وہ اشرافیہ بے نقاب ہوئی ہے، اور ایک جانب وہ ممالک بے نقاب ہوئے ہیں کہ جو اس انداز میں اپنی معیشتیں چلا رہے ہیں، اور ان کا منافقانہ جو چہرہ ہے وہ سامنے آیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ہائپ کریٹ نہ ہونے کی۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جب پیناما پیپرز جس طرح جب پیناما پیپرز آئے، اس میں میاں نواز شریف صاحب ان کے اہل خانہ کا نام تھا، اور ان کے جو اپارٹمنٹ سے متعلق باتیں 90 کی دہائی سے ہوتی آ رہی تھیں، جس کو کسی سٹیج پہ وارن کرتے تھے، کسی سٹیج پہ وارن نہیں کرتے تھے۔ اس میں میاں نواز شریف صاحب نے خود اس کی ہائپ کریٹ کروائی۔ وہ اس طرح ہائپ کریٹ کروائی میاں نواز شریف صاحب نے کہ جب یہ آئی سی آئی جی کی تحقیقات ہو رہی تھیں، تو میں چلے نام نہیں لیتا لیکن کسی نے انفارمیشن لیک کر دی کہ جی آپ سے متعلق یہ پیناما پیپرز میں نام آ رہا ہے۔ پھر حسین نواز صاحب کا ایک انٹرویو ارینج کروایا گیا، انہوں نے بیٹھ کے کہا الحمدللہ جی وہ فلیٹ ہمارے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا جب لیکس آ گئیں، پھر اس کے بعد یعنی اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہو چکا تھا جس میں مریم نواز صاحبہ یہ کہہ چکی تھی کہ ہماری یعنی ایک پروگرام میں ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب نے اس معاملے کو پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ کہا اس وقت کہ جی حضور یہ ہیں وہ ذرائع جو مشہور فقرہ بنا، پھر اپنے ہی کہی ہوئی بات کو آن کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ پارلیمنٹ میں کہی ہوئی بات جو ہے اس کو تو استثناء ہوتا ہے، عدالت میں اس کو ایویڈنس کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر شہباز شریف کے الگ بیان آ رہے تھے، نواز شریف صاحب کے الگ بیان آ رہے تھے۔ جی الگ بیان آ رہے تھے۔ اچھا وہ اس معاملے کو میاں نواز شریف خود اس لیول پر لے گئے کہ اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے گئے۔ پھر اس میں چودھری نثار کی یہ رائے تھی کہ یہ معاملہ عدالت میں نہ لے کے جایا جائے، لیکن میاں نواز شریف صاحب وہ عدالتوں کے حوالے سے ان کے ذہن میں کچھ اور تھا، اور انہوں نے کہا جی نہیں جائے عدالت میں تو نائل ہو ہی نہیں سکتا۔ معاملہ عدالت میں چلا گیا، عدالت نے ان سے اس حوالے سے جب پوچھا تو وہاں پر قطری خط اور اس طرح کی چیزیں آ گئیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد اتنا معاملے کو کمپلیکیٹڈ کر دیا۔ اچھا میاں نواز شریف کبھی بھی پاناما پیپرز میں ڈسکوالیفائی نہ ہوتے، ہوا کیا کہ
कैपिटल एफजेडी से मुतलिक उनके जो पासपोर्ट की तस्वीरें जो थी ना, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी के साथ लगाई थी, उनमें एक वीजे अकामे की तस्वीर भी थी। वो उन्होंने जो अपने एसेट्स वाले वो जो गोशवारे हैं उसमें डिक्लेयर नहीं की हुई थी। हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये कैपिटल एफजेडी का मामला आया, उन्होंने कहा हाँ जी कैपिटल एफजेडी जो है उसमें मैंने अकामा लेने के लिए मुलाजमत कर रखी है। उन्होंने एक मामले को गैर मुतनाज़ा बना दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते गए, और उन्होंने कहा मैंने कौन सा डिस्क्वालीफाई होना है। पहली अपनी उनकी गलती वो थी। उसके बाद मामला फिर जब जीआईटी बनती है, जीआईटी में भी जब ताउन नहीं किया, जीआईटी ने इतने जब सबूत इकट्ठे किए, फिर मामला एहतसाब अदालतों में आया और आज तक ये मामला चल रहा है। अच्छा, ये जो मामला है जो हम अभी ये पेंडोरा लीक्स की बात करते हैं, पेंडोरा पेपर्स की बात करते हैं, तो पेंडोरा पेपर्स की हाइप इसके आने से पहले इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन कुछ हलकों में लीक की गई, या जिस तरह से भी वो बाहर आई, उसमें ज़मान पार्क की रिहाइश जो है इमरान खान साहब के हवाले से ये आई कि ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब की कोई ऑफशोर कंपनी आ जाएगी, शोर मच जाएगा। लेकिन पता चला कि वो एक रिहाइश गाह की दो मुख्तलिफ अतराफ में जो एंट्रेंस हैं, उसका जो नंबर 2 है वो किसी और का है, उसका इमरान खान से सबसे ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से उन्होंने आईसीआईजी वालों ने इनसे राब्ता भी किया, उन्होंने कहा हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको इन्होंने डिसऑन किया। एक तो वो धचका लगा। उसके बाद फिर जिन लोगों के नाम आए, तकरीबन 7 के करीब ये पॉलिटिशियंस और इन अहम लोगों के नाम आए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो इसका एक सियासी पहलू है, एक है कानूनी पहलू। सियासी पहलू को इमरान खान साहब ने डील करना है, जो उन पे प्रेशर है, अगरचे मैं समझता हूं कि इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि हमारी अपोजिशन कैश तो तब करती है कि वो खुद फाइनेंशियली क्लियर होते। मसला ये है कि जिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का आप देख लें, मुस्लिम लीग नून का देख लें, नवाज शरीफ साहब किस बात पे नायल हुए कि झूठ बोला, बददियानती की, पैसा चोरी किया, यहाँ से मुंतकिल किया, मनी टेल नहीं दे सके, लंदन फ्लैट्स कहाँ से बनाए, बेटे हसन नवाज की जो बिजनेस है वो कहाँ से चल रहा है, हुसैन नवाज का बिजनेस कहाँ पे चल रहा है। देखिए नवाज शरीफ साहब पर 3 केस थे। एक थे ये लंदन फ्लैट्स, उसमें वो कन्विक्ट हुए। दूसरा उनके ऊपर केस था कि हुसैन नवाज अल अजीज़िया जो हुसैन नवाज के बिजनेस हैं उसके ऊपर कन्विक्ट हुए, तो बरी हुए। फ्लैगशिप जिसमें हसन नवाज का बिजनेस था उसमें वो क्लियर हुए, लेकिन उसमें भी यह है कि वो मामला नैब ने चैलेंज कर रखा है और नवंबर में उसकी समाअत होगी। नैब ये कहता है कि गलत तौर पर उनको बरी किया जज अरशद मलिक मरहूम साहब ने। और दूसरा अल अजीज़िया में भी नैब का ये मौक़िफ़ है कि उनको 7 साल नहीं 14 साल सज़ा होनी चाहिए। दूसरा हमारी देखें इसकी हाइप इसलिए ज़्यादा थी कि पहले ही ये ज़राए से एक बना दी गई हाइप, और वो ये थी कि जैसे इमरान खान साहब का इसमें नाम आ रहा है और चलना शुरू हो गए कि बंदा ये जो कहा जाता है ना, बंदा ईमानदार है, लग पता जाएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, रुख बदल जाएगा। पूरी कौम जो है वो इंतजार कर रही थी। इमरान खान के हामी और मुखालफिन इंतजार की सूली पर लटके हुए थे, पूरी कौम की नजरें थी पेंडोरा लीक्स की तरफ। और फिर इसमें यह भी है कि हुकूमत ने 24 घंटे पहले ये किया था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुस्लिम लीग नून को जब शरीफ खानदान को पता चल गया था कि पनामा लीक्स आने वाले हैं, उन्होंने पहले हुसैन नवाज के इंटरव्यूज करा दिए थे। हुकूमत ने भी, इमरान खान हुकूमत ने भी ऐसे किया। इमरान खान साहब ने तो नहीं कहा होगा, लेकिन जाहिर उनकी टीम में से किसी ने यह किया कि उनको क्योंकि खतरा था कि वो जो ज़मान पार्क वाला एक एड्रेस है जो इमरान खान साहब का वही एड्रेस है, हाँ, और जो ऑफशोर कंपनी का एक मालिक है उसका भी वही एड्रेस है। यानी एक तरफ से आए तो वो जो फरीदुद्दीन साहब हैं उनके घर का वो एड्रेस है, दूसरी साइड पे दाखिल हो तो इमरान खान साहब के घर का वो एड्रेस है। तो इसलिए वो क्योंकि सवालनामा इमरान खान साहब को भेजा गया था, उनकी टीम के पास था, और उनको ये खतरा था कि कल को ये हमारे खिलाफ ये हाइप क्रिएट हो सकती है जो कि गलत होगी। तो इसलिए उन्होंने पहले ही वो एक मीडिया हाउस को वो दे दिया वो क्वेश्चन, और वो उन्होंने भी एक स्टोरी जिस तरह से शरीफ खानदान ने किया था वो करके, और उसका इम्पैक्ट जो है वो पहले ही जो है वो बहुत कम कर दिया था। अच्छा देखें मारिया, अगर तो जैसे आज इमरान खान साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है, 9:30 बजे पेंडोरा लीक्स आती हैं, 10:02 पे इमरान खान साहब ट्वीट कर देते हैं और आज मीटिंग करके ऐलान कर देते हैं कमीशन बनाने का। लेकिन अगर तो अदील वड़ाई साहब और मारिया साहबा, अगर तो ये काम इमरान खान साहब ने देना है शहजाद अकबर साहब को, तो फिर वो सुलह कर लें तो बेहतर है इन लोगों से, फिर ना ही करें तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि 3 सालों में कोई 1 रुपया बता दें कि शहजाद अकबर साहब बाहर से लेके आ सके हों, दुबई से, यूके से, बाहर से 1 रुपया वो लेके। इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर के ममालिक इतने आसानी से पैसा नहीं देंगे। भाई आपके पास तो कानून है ना, आपने यहाँ क्या कर लिया उन लोगों का। और फिर उसके बाद यह कि अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, शहजाद अकबर साहब ने 1 हफ्ता पहले स्टोरी आई जो NCA वाली आई, क्या कहा था शहजाद अकबर साहब ने कि वो जो मुर्तज़ा अली शाह साहब हैं इनको मैं अदालत में लेके जाऊंगा। इतने स्ट्रॉन्ग अगर प्रूफ्स हैं तो उस पे आगे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए मारिया, मैं इस पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इस पे मैं आता हूँ। लेकिन मैं वो जो बात कर रहा था कि देखें स्टोरी आती है मुर्तज़ा अली शाह साहब की, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं गलत है, ट्विस्ट किया है, गलत फैक्ट्स हैं, मैं इनको अदालत में लेके जाऊंगा। 8 दिन हो गए, क्यों नहीं अदालत में लेके गए? मुर्तज़ा अली शाह की तो उसके 2 दिन बाद फिर स्टोरी आ गई कि मैं अपनी स्टोरी पे कायम हूँ। मुर्तज़ा अली शाह तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे लेके जाओ अदालत में, तो लेके जाए ना शहजाद अकबर साहब। इसका मतलब ये है कि फिर
शहजाद अकबर साहब ना सिर्फ कौम से झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान साहब से झूठ बोल रहे हैं, हुकूमत से झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों से झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोल रहे और अगर सच्चे हैं तो लेके जाए ना मुर्तज़ा अली शाह को, क्यों नहीं लेके जाते अदालत में? मुर्तज़ा अली शाह तो इंतजार कर रहे हैं, वो तो स्टोरी में कह रहे हैं कि मैं कायम हूं कि पाकिस्तान की दरखास्त पर ये सारा कुछ शुरू हुआ था। जहां तक बात है मारिया, इस बात आप कह रही हैं कि जब इतने चीजें मौजूद हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती, यही तो सवाल है, यही तो कौम का सवाल है कि भाई बात यह है कि 444 450 लोग आते हैं पनामा लीग्स में, पैराडाइज लीग्स आती है, दुबई लीग्स आती है, अब ये पेंडोरा लीग्स आ गई है। भाई 2-2.5 हजार लोग हैं। इसमें क्या इन तमाम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती हुई है, सिर्फ नाम सामने आते हैं? देखें नाम तो आगे सामने, अब तहकीकात तो एफबीआर ने करनी है ना, हुकूमत ने करनी है। और अब अगर तो इमरान खान साहब ने खुद इंटरेस्ट लिया और किया, क्योंकि इमरान खान साहब खुद फाइनेंशियली ओके हैं, उनको का मसला नहीं है, उनको ये मसला नहीं है कि उनके किसी दोस्त का नाम आएगा तो उसको बचा लेंगे। लेकिन फिर वही कहूंगा, अगर ये काम शहजाद अकबर साहब के जरिए करवाने तो बेहतर है सुलह कर लें और कौम को झूठे जो है वो उम्मीदें ना दिखाएं और ना दिलाएं, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, इस चैप्टर को क्लोज कर दें। और अगर वो बंदे बैकडोर को पैसे ऐसे देते हैं, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन शहजाद अकबर साहब से करवानी है तो इट्स बेटर कि आप ना ही करवाएं। अदील, FIA भी इसके ऊपर मुतहरिक हो चुका है, IB के इदारे भी इसके ऊपर मुतहरिक हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? क्या इसमें कोई उनका रोल है? क्या वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं? मतलब नताइज, इन शॉर्ट एक्शन कब होगा, नताइज हमें रिजल्ट्स कब मिलेंगे कि इन पे कोई एक्शन भी हुआ है? देखें, इसमें एक तो नैब की डोमेन भी इसमें आ जाएगी, एक FPR की आ जाएगी, एक FIA की आ जाएगी, और एक डोमेन जो है ये जो 7 लोगों से मुतल्लिक है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन होगी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाला मामला जो है अगर ये यहाँ आता है तो ये काफी तवील होगा। उसकी रीजन ये है कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी शख्स इन कंपनियों के हवाले से यानी इनको तस्लीम नहीं करता या तस्लीम करके कहता है जी कि इनके तो मलकियत में एसेट्स नहीं थे, या इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बना देता है, तो ये मामला चला जाएगा ट्रायल कोर्ट में। जिस तरह पैनामा केस में GIT के बाद वो जो रेफरेंस वाला मामला है वो फिर गया ट्रायल कोर्ट में गया, उसके बाद उस पर जिरा हुई, एविडेंस रिकॉर्ड हुए। इसी तरह ये मामला भी अगर किसी भी इन वज़रा में से किसी की डिस्क्वालिफिकेशन का मसला आता है तो ऐसे नहीं होगा कि कोई इलेक्शन कमीशन जाएगा और वो साहब जाकर इलेक्शन कमीशन में बोलेंगे जी देखें मैंने तो इसमें हुआ था। चूंकि ये एक माली मामला है, ये एक मालियाती स्कैंडल है और इसमें ये ट्रायल कोर्ट में मामला जाएगा। अगर किसी मुतासरा फरीक ने वहां जाके इसको चैलेंज करना है तो इलेक्शन कमीशन, अभी देख लेना ये जो फैसल वावडा वाला मामला है, दोहरी शरीयत वाला जो मामला है, वो अभी तक किसी ना किसी तौर पर कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ये जो मामला है इसमें भी इलेक्शन कमीशन में ही अल्टीमेटली मामला पहुंचना है। ये साल में पहुंचे, 2 साल में पहुंचे, 3 साल में पहुंचे, लेकिन उसमें ये बात बड़ी अहम होगी, ये सारे लोग ये तो कह रहे हैं कि हमने FPR में फलां चीज जो है डिक्लेयर की हुई है, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ते हुए या हर साल जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फॉर्म जो सबमिट करना होता है, क्या इसमें उसमें उन्होंने किया है? अगर इसमें नहीं किया भी हुआ तो और FPR में कर दिया, यहां नहीं किया, तो उस सूरत में भी इनको नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, ठीक है।